ایک شخص اپنی کہانی سناتا ہے۔ میرا نام سلطان ہے اور میرا شمار شہر کے گنے چنے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ میری عمر اس وقت 200 سال کے لگ بھگ ہے، مگر میں ابھی تک جوان ہوں، جبکہ میرے بیٹوں کے بیٹے بوڑھے ہو کر مر کھپ گئے ہیں۔ میری اس لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ میں ایک غریب انسان سے رئیس کیسے بنا؟ یہ ایک ایسی ہولناک داستان ہے کہ اس واقعات یاد کر کے ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج سے 200 برس پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت جوان تھا اور ایک فرم میں ملازم تھا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی۔ کام کے سلسلے میں مجھے ایک بار بیرون ملک جانا پڑا۔ مجھے بحری جہاز سے سفر کرنا تھا، چنانچہ مقررہ تاریخ کو میں بندرگاہ پہنچا اور بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس وقت میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ 2 عرشوں والا بڑا بحری جہاز تھا۔ اس میں 1100 کے لگ بھگ مسافروں کی گنجائش تھی۔ جہاز میں کل 500 کیبن تھے۔ میں نے بھی ایک کیبن بک کروایا ہوا تھا۔ جہاز کے بڑے ہال میں مسافروں کی تفریح کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ پروجیکٹر کے ذریعے فلمیں دکھائی جاتی، انڈور گیمز کا بھی بندوبست تھا، اس لیے سفر بڑے مزے سے کٹ رہا تھا۔ سفر کا چھٹا دن تھا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا ناول پڑھ رہا تھا کہ زوردار جھٹکے لگے۔ میں گھبرا کر کیبن سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ہنگامہ بھڑکا ہے۔ سمندر میں طوفان آ گیا تھا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخوں پکار نے قیامت کا سماں باندھ رکھا تھا۔ بڑی بڑی موجیں منو وزنی جہاز کو تنکے کی طرح ادھر ادھر اچھال رہی تھیں۔ میں کپتان کے کیبن کی طرف بھاگا۔ کپتان انجن روم میں تھا اور جہاز کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر بھپڑی ہوئی موجوں کے آگے بے بس تھا۔ جب تباہی سامنے نظر آنے لگی تو لائف بوٹ سمندر میں اتاری جانے لگیں۔ مسافروں میں دھکم پیل شروع ہو گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے لوگ سب کچھ بھول گئے تھے۔ عملے کے لوگ چیخ چیخ کر انہیں پرسکون رہنے کی ہدایت کرتے، مگر کوئی ان کی بات پر کان نہ دھرتا۔ اس افراتفری میں درجنوں بچے اور بوڑھے پاؤں تلے کچلے گئے۔ لوگ لائف بوٹس میں چھلانگیں لگا رہے تھے، مگر جب لائف بوٹس میں گنجائش سے زیادہ افراد جمع ہو جاتے تو وہ ٹوٹ جاتی۔ میں بھی ایک لائف بوٹ میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس میں پہلے سے کافی لوگ تھے اور ابھی چھلانگیں لگانے کا سلسلہ جاری تھا کہ عملے کے کسی فرد نے رسا کھول دیا۔ لائف بوٹ موجوں پر اچھلی اور الٹ گئی۔ میں مضبوطی سے کشتی کے کنارے کو پکڑے ہوا تھا۔ خدا کو زندگی منظور تھی اور قسمت میں ان ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہونا لکھا تھا۔ کشتی جب سیدھی ہوئی تو میں اس کے اندر تھا۔ بے شمار لوگ چیختے چلاتے پانی میں کبھی ڈوب رہے تھے تو کبھی ابھر رہے تھے۔ جہاز کا پچھلا حصہ پانی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ انسان کتنا بے بس اور حقیر ہے، اس کا احساس مجھے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کشتی موجوں پر اچھلتی گرتی جہاز سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سینکڑوں لوگ میرے سامنے بھپڑی موجوں کی خوراک بن گئے اور میں چاہنے کے باوجود ان کی مدد نہ کر سکا۔ لہروں پر سفر کرتی کشتی جہاز سے بہت دور نکل آئی۔ سمندر رفتہ رفتہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ میرے چاروں طرف تا حد نظر نیلا پانی اور سر پر نیلا آسمان پھیلا ہوا تھا۔ جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ رات بے حد سرد تھی۔ میں کشتی کے ایک کونے میں ٹھٹرتا رہا۔ کشتی کس طرف جا رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ بیتے ہوئے لمحے اتنے خوفناک تھے کہ ان کا تصور کر کے کب کبھی طاری ہو جاتی۔ رات گزری، دن چڑھایا تو بھوک کا احساس ہوا، مگر یہاں تھا ہی کیا جو میں کھا سکتا۔ سمندر کے ٹھنڈے اور کھارے پانی کا گھونٹ بھرنا چاہا تو ابکائی آ گئی۔ کشتی اب ہولے ہولے جا رہی تھی۔ سورج سر پر آ گیا تو اس کی تپش ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں نے قمیض اتار کر سمندر کے پانی سے بھگوئی اور جسم پر ڈالی۔ اس سے قدرے سکون ملا۔ چاروں طرف پانی دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگتی اور میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرتا کہ زندہ سلامت زمین تک پہنچ جاؤں۔ 2 دن گزر گئے۔ بھوک کے مارے پیٹ اندر کو دھنس گیا تھا۔ میری حالت بے حد خستہ ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کشتی کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھیں اور کبھی کبھار کوئی مچھلی اچھل کر کشتی میں آ گرتی اور پھر دوبارہ سمندر میں چلی جاتی۔ بھوک سے تنگ آ کر میں کنارے لگ کر بیٹھ گیا اور جھپٹا مار کر ایک مچھلی پکڑ لی۔ مچھلی میرے ہاتھ میں تڑپنے لگی اور میں نے جیب سے چاقو نکال کر اسے ذبح کیا اور کچا ہی چبانے لگا۔ اس طرح بھوک کسی حد تک مٹ گئی، مگر پیاس اور بھڑک اٹھی تھی۔ پھر خدا نے پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آسمان پر کالے بادل امڈ آئے اور بارش ہونے لگی۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا اور خوب نہایا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نئی زندگی ملی ہو۔
उसी शाम बहुत दूर मुझे सरमई रंग की लकीर नजर आई। मैं उछल पड़ा, जमीन नजर आ गई थी। खुशकिस्मती से हवा का रुख भी उधर ही था। जमीन नजदीक आती गई और इसके किनारे लगे दरख्त नजर आने लगे। मैंने पानी में छलांग लगा दी और तैरता हुआ जमीन की तरफ बढ़ा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मुझे किस कदर खुशी हुई थी। काफी देर तक मैं साहिल पर पड़ा सुस्ताता रहा, फिर उठा और नारियल के दरख्त से नारियल तोड़कर इनका पानी पीने के अलावा भूख भी मिटाई और जजीरे का जायजा लेने लगा। सामने एक जंगल फैला हुआ था, जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। रात मैंने वहीं गुजारी और सुबह मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल ज्यादा तवील साबित ना हुआ और जंगल से निकलते ही खुशी के मारे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने छोटी छोटी इमारतें नजर आ रही थीं। मैंने इस तरफ दौड़ लगा दी। सबसे पहले मुझे घोड़ा नजर आया जो घास चर रहा था, मगर जूं ही मैं उसके करीब पहुंचा मुझे हैरत का एक झटका लगा। घोड़ा स्याह चमकदार पत्थर का था। इसका एक पांव यूं आगे को उठा हुआ था जैसे आगे बढ़ना चाहता हो। इससे कुछ फासले पर एक शख्स बैठा था, मगर वो भी पत्थर का था। इसके हाथ में एक रस्सी थी और होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। सरसरी नजर से देखने पर वो घोड़ा और शख्स असली और गोश्त पोस्ट के लगते थे। मैंने डरते डरते इस शख्स को छुआ। वो पत्थर का ही था। मैं घबरा गया। फिर सोचा शायद ये किसी संग तराश का कमाल है। मैं इमारतों की तरफ बढ़ा। फिर मेरी हैरत दो चंद हो गई। इमारतों में मुजस्मे मौजूद थे। कोई बैठा हुआ था, कोई चारपाई पर आराम कर रहा था। किसी का एक पांव यूं उठा हुआ जैसे चलते चलते रुक गया हो। खौफ की एक सर्द लहर मुझे अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था। इन इमारतों में मौजूद हर शय पत्थर की थी। बस मैं एक वाहिद इंसान था जो जिंदा था। एक इमारत के बाहर दो मुजस्मे हाथ में नेज़े थामे यूं खड़े थे जैसे पहरा दे रहे हों। मैं इमारत में दाखिल हो गया। इमारत बेहद शानदार थी। एक बड़े सहन में मुजस्मे इस तरह बैठे थे जैसे दरबार लगा हो। इनके सामने तख्त पर एक औरत और मर्द के मुजस्मे थे। उन्होंने शाही लिबास पहन रखा था। मैं हैरान परेशान इमारत के कमरों में घूमता रहा। हर चीज पत्थर की थी। एक सजी हुई ख्वाबगाह में बेहद खूबसूरत शहजादी सो रही थी। यूं लगता था जैसे अभी जाग उठे बैठेगी। मैंने इसे छुआ तो पता चला कि ये भी पत्थर की है। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि या खुदा, ये क्या माजरा है। ये पत्थर का घर, पत्थर के लोग, आखिर राज क्या है। अब मेरा खौफ किसी हद तक दूर हो चुका था। मुझे यकीन था कि सब पत्थर के हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। दिन गुजर गया और रात आ गई। मैं शहजादी की ख्वाबगाह में मौजूद था और सोने की तैयारी कर रहा था कि हल्की सी करा की आवाज सुनाई दी। मेरा तो रवां रवां कांप उठा। खौफ की शिद्दत से यूं लगता था कि दिल धड़कना बंद हो जाएगा। डरते डरते चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। मैंने अपना वहम ख्याल किया, लेकिन इस वक्त दोबारा आवाज आई। इस बार मैंने वाज़िह तौर पर सुना था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश न थी। मैंने घबराए हुए अंदाज में कमरे में नजर दौड़ाई कि अचानक कमरे में मौजूद शमादान में लगी मोमबत्तियां खुद ब खुद रोशन हो गई। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो लही नहीं, भाग जाना चाहा, मगर टांगों ने हरकत करने से इनकार कर दिया। कराहने की आवाज दोबारा सुनाई दी। आवाज इस मसहरी की तरफ से आई थी जिस पर पत्थर की शहजादी लेटी हुई थी। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी पुरअसरार ताकत ने मुझे अपने आहनी शिकंजे में जकड़ लिया हो। मैं आंखें फाड़े तकता रह गया। वो मंजर ही ऐसा था। पत्थर की शहजादी जिंदा हो रही थी। मेरे देखते ही देखते वो उठ बैठी और छोटे छोटे कदम बढ़ाती मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने सोचा चीखूं चिल्लाऊं, लेकिन हलक से कोई आवाज ना निकली। खलक तो खुश्क हो रहा था। वो मेरी तरफ आती गई। पत्थर की वो शहजादी मेरे पास आकर रुक गई। फिर कमरे में आवाज गूंजी, ए अजनबी, खौफ को दिल से निकाल दे। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम तो हमारे नजात दहिंदा बनकर आए हो। तुम कौन हो? अभी तो पत्थर की थीं। मैंने अटक अटक कर कहा, मैं इस सल्तनत की शहजादी हूँ। ये जादू की सल्तनत है। अब यहाँ जिंदगी और मौत का चक्कर नहीं चलता। यहाँ वक्त की रफ्तार बहुत तेज है। यूं समझ लो कि तुम्हारी दुनिया का एक साल और यहाँ का एक दिन बराबर है। शहजादी ने जवाब दिया। मैं मुंह खोले उसकी बात सुन रहा था। शहजादी ने दोबारा कहना शुरू किया, तुमने पत्थर के जितने मुजस्मे देखे हैं वो सब इंसान हैं, मगर जादू के जोर से पत्थर के बना दिए गए हैं। बात यह है कि हमारी सल्तनत का सबसे बड़ा जादूगर जो मुझसे शादी करना चाहता था, वो बूढ़ा था। मैंने इनकार कर दिया। उसने तैश में आकर सबको पत्थर का बना दिया।
इनमें सिर्फ मैं वो वाहिद हस्ती हूँ जो रात के वक्त फिर से दोबारा इंसान बन जाती है। ये इसलिए है कि अगर मैं जादूगर से शादी पर रजामंद हो जाऊं तो इस महल के नीचे जादूगर रहता है, उसे बता दूं। वो जादूगर एक माह सोता और एक माह जागता है। ये महीना उसके सोने का है, इसलिए तुम अब तक जिंदा हो, वरना वो तुम्हें जला डालता या फिर पत्थर का बना देता। ये कहकर शहजादी खामोश हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। ए शहजादी, इस जादूगर के खात्मे की कोई तदबीर नहीं है? मैंने पूछा। अब मेरे औसान काफी हद तक बहाल हो चुके थे। तुम हमारी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते, तुम चाहो तो उसे हलाक कर सकते हो। सामने दीवार पर जो तलवार लटक रही है, ये जादू की तलवार है। इससे तुम जादूगर के अलावा इसके कबीले में मौजूद तमाम बलाओं का मुकाबला कर सकते हो। शहजादी ने जवाब दिया। तुम इस तलवार को इस्तेमाल क्यों नहीं करती? मैंने कहा। अगर मैं दीवार के करीब जाऊंगी तो जल जाऊंगी। जादूगर ने जादू कर रखा है, शहजादी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने जोश भरे लहजे में कहा। खुदा ने चाहा तो जालिम जादूगर मिट जाएगा। तो फिर तलवार दीवार से उतार लो, मैं इस खुफिया रास्ते तक तुम्हारी रहनुमाई करूंगी जो जादूगर के ठिकाने तक जाता है, शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कलमा पढ़ते हुए तलवार उतार ली। तलवार गैर मामूली तौर पर वजनी थी और इसकी धार बेहद तेज थी। शहजादी ने मुझे अपने पीछे आने को कहा और बाहर चल दी। मुख्तलिफ कमरों से गुजरकर हमें कुएं के करीब पहुंचे। शहजादी बोली, ए रहमदिल इंसान, इस कुएं की तह में वो खुफिया दरवाजा है जो जादूगर के अड्डे तक जाता है। तुम तलवार दरवाजे से लगा देना, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। खुदा हाफिज शहजादी, मैं इंशाल्लाह कामयाब लौटूंगा, मैंने कहा और आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी तारीक गार में गिरता जा रहा हूँ। खासी देर बाद मेरे पांव फर्श से टकराए। मैंने आंखें खोल दी और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे चारों तरफ पानी है, मगर मेरे कपड़े खुश्क हैं। सामने एक दरवाजा था। मैंने दरवाजे से तलवार लगाई। खौफनाक चिरचिराहट के साथ दरवाजा खुलता चला गया। सामने सीढ़ियां थीं जो नीचे को जा रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर चल दिया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था, जिससे अंधेरा छा गया। मगर तलवार से हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी और मैं सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही मेरे कानों में भिनभिनाहट सुनाई दी और एक तूफान की तरह सैकड़ों चमगादड़ें चीखती चिल्लाती मेरी तरफ बढ़ी। मैंने तलवार सीधी की, दूसरे ही लम्हे वो जलने लगी और गायब हो गईं। मैं आगे बढ़ा। सामने तवील सुरंग थी। यूं ही मैंने सुरंग में कदम रखा, चीखों पुकार का एक सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हजारों बदरूहें मिलकर चिल्ला रही हों। खौफ के मारे मेरी हालत पतली हो रही थी। खून रगों में मंजमद होता महसूस हो रहा था। कुछ देर खड़ा मैं इधर उधर देखता रहा, फिर कलमा पढ़ता हुआ आगे बढ़ा। इसी लम्हे इंसानी ढांचे नमूदार हुए और कहका लगाते मेरी तरफ बढ़े। इनके हाथों में तलवारें थीं। मुझ पर लर्जा तारी हो गया। ढांचे मेरे करीब आने की बजाय कुछ फासले पर रुक गए और मुझे डराने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। मैंने तलवार घुमाई और तमाम ढांचे चीखते चिल्लाते उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उनके जाते ही एक बहुत बड़ा अस्तरा नजर आया जो आग उगलता मेरी तरफ आ रहा था। मेरे तो पसीने छूट गए। मौत सामने नजर आने लगी। असदिया ने करीब आकर जुबान पलपलाई और आवाज आई, ए आदमजाद, जिंदगी चाहता है तो भाग जा, इस तलवार को हाथ से फेंक दे, वरना मैं तुझे निगल लूंगा। मैं समझ गया कि ये भी तलवार से खौफजदा है और तलवार छीनना चाहता है। मैंने तलवार उसकी तरफ बढ़ाई और वो गायब हो गया। सफर का सिलसिला फिर जारी हो गया। सुरंग शैतान की आंत की तरह लंबी थी। मैं कई दिन इसमें चलता रहा, मगर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। 7 दिन बाद अल्लाह अल्लाह करके सुरंग खत्म हुई। मैं एक बड़े बाग में पहुंचा तो देखा कि एक शहजादी बैठी है। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने तो जुल्म फतह कर लिया। ये तलवार मुझे दे दो। करीब था कि मैं तलवार उसे दे सकता, मगर फिर ख्याल आया कि जादूगर से तो अभी टकराव हुआ ही नहीं है, जुल्म कैसे खत्म हो सकता है। बस ये ख्याल आते ही मैं समझ गया कि ये भी जादूगर का कोई चेला बैठा है। मैं तलवार उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने जोरदार चीख मारी। शहजादी की जगह एक भूतनी खड़ी थी। काला रंग, बालों में सांप कलबला रहे थे। आंखें इस तरह लाल जैसे 2 अंगारे हों। इसके पीले पीले दांत होंठों से बाहर झांक रहे थे और इन दांतों से खून टपक रहा था। वो जोर से हंसी और बोली, ए आदमजाद, क्यों जिंदगी को दुत्कार कर मौत को गले लगाता है? अब भी तेरी जान बख्शी हो सकती है। ये तलवार फेंक दे, मैं तेरे लिए दौलत के अंबार लगा दूंगी। ये कहकर उसने हाथ लहराया तो फर्श पर जगमग जगमग करते हीरे जवाहरात के ढेर लग गए। इनकी चमक दमक से मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। इनमें हर हीरा बतख के अंडे के बराबर था। भूतनी ने कहा, ये सारे तुझे मिल सकते हैं, शर्त सिर्फ ये है कि तलवार फेंक दे।
मगर मैं भूतनी के जाल में ना फंस सका। मैं तलवार सौंध के इसकी तरफ लपका और वो शोर मचाती भाग निकली। हीरे जवाहरात के ढेर गायब हो गए। बाग से निकल कर मैं एक कमरे में पहुंचा जिसमें ताबूत पड़ा था। ताबूत बहुत बड़ा था और इसका ढक्कन उठा हुआ था। मैं ताबूत की तरफ बढ़ा ही था कि खौफनाक आवाजें आने लगी। भूत, चुड़ैलें और भूतनियां मुझे डराने लगे। तलवार होने की वजह से वो मेरे पास न आ सकती थीं। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। इस वक्त हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं उड़ जाऊंगा। फिर ताबूत से जादूगर निकला। उसका जिस्म भूतने जैसा था, जिस पर बड़े बड़े काले बाल उगे हुए थे, आंखें अकाब जैसी और नाक तोते की तरह मुड़ी हुई थी। इसके हाथ में एक नारियल था। जादूगर की आंखों से खौफ और वहशत टपक रही थी। उसने ऐसा जोरदार कहका लगाया कि दरो दीवार कांप उठे। फिर बोला, तुमने हमारे आराम में खलल डाला है। हम तुझे भस्म कर देंगे। ले, भयानक मौत के लिए तैयार हो जा। ये कहकर जादूगर ने नारियल जोर से जमीन पर दे मारा। नारियल फट गया। इससे धुआं निकला जिसने एक जिन की सूरत इख्तियार कर ली। वो जिन मेरी तरफ लपका। मैंने तलवार मजबूती से पकड़ ली। फिर जो ही जिन मेरे पास आया, मैंने तलवार घुमा दी। तलवार मेरे हाथ से निकलकर बुलंद हुई और जिन की गर्दन काटकर फिर मेरे हाथ में आ गई। जादूगर ये देखकर घबरा गया। इसने भागना चाहा मगर मौत ने मौका ही ना दिया और छलांग लगाकर इस पर जा पड़ा। जादूगर मेरी मिन्नत समाजत करने लगा और लालच देने लगा, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और तलवार का भरपूर वार करके उसकी गर्दन उड़ा दी। एक हैबतनाक धमाका हुआ। इसके साथ ही एक बेहद बूढ़े और मकरूह सूरत शख्स की लाश मेरे सामने थी। ये जादूगर था। कमरा, बाग, भूत सब कुछ गायब हो गया। मैं अब इस कुएं के पास खड़ा था जिसमें शहजादी के कहने पर छलांग लगाई थी। तिलस्म टूट चुका था। पत्थर के मुजस्मे इंसान बन चुके थे। शहजादी भागती हुई आई और मेरा हाथ पकड़कर महल में ले गई। बादशाह, मलका, दरबारी सब ठीक हो चुके थे। शहजादी ने जब बताया कि मैंने ही जादूगर का खात्मा किया है, तो वो सब मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। बादशाह ने मुझे अपने बराबर तख्त पर बिठा दिया। कई माह तक मैं इनका मेहमान रहा। वापस अपनी दुनिया जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह और शहजादी ने मुझे रोकना चाहा, मगर मुझे वतन की याद बुरी तरह सता रही थी। अजीज़ो अकारब याद आ रहे थे। बादशाह ने मेरे इसरार पर मुझे वापस भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुझे कीमती हीरे जवाहरात दिए गए। फिर बादशाह ने आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मगर मैंने हदायत के मुताबिक आंखें बंद रखीं। खासी देर बाद एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, आंखें खोल दो, तुम्हारा शहर आ गया है। मैंने इस हदायत पर अमल किया। आंखें खोलीं तो देखा कि मैं अपने शहर में मौजूद हूँ, मगर ये क्या, शहर का तो नक्शा ही बदल चुका था। आसमान से बातें करती इमारतें, शीशे की तरह चमकती सड़कें, जदीद मोटर गाड़ियाँ। मैं दंग रह गया। अपना घर तलाश करना चाहा, मगर वहां तो बुलंद इमारत थी। मैंने अपने बेटे नदीम का दरियाफ्त किया तो एक शख्स ने बताया कि वो तो बूढ़े होकर मर चुके हैं। हैरत की ज्यादती से मेरी आंखें फैल गईं। चंद माह पहले ही तो मैं गया था। फिर मुझे याद आया कि शहजादी ने कहा था कि हमारी दुनिया का एक दिन तुम्हारी दुनिया के एक साल के बराबर है। उस शख्स ने मुझसे पूछा कि आप नदीम के क्या लगते हैं। मैंने कहा बाप। तो वो बिगड़ कर बोला, क्या मजाक कर रहे हैं? नदीम साहब तो मेरे दादा थे। मुझे हंसी आ गई। यानी ये मेरे बेटे के बेटे का बेटा था, मगर फिर भी उम्र में मुझसे बड़ा था। मैंने उसे ये न बताया कि बेटा मैं तुम्हारा परदादा हूँ, क्योंकि उसने मानना ही नहीं था। मेरी दास्तान ही ऐसी थी कि कोई उस पर यकीन ही नहीं कर सकता था। खुद मुझे ये वाक़यात पेश न आए हुए होते तो कभी यकीन न करता। मैंने हीरे जवाहरात फ़रोख्त करके कारोबार शुरू कर लिया, नई शादी कर ली। अब मेरे 2 बच्चे हैं और मैं मज़े से हूँ।